Hello childrens. Today we are going to learn about the chapter number 1 in the bio section for class 10th in improvement in food resources part 3. And in the part 3 we see that we study about the nutrients, different types of nutrients, and in this series the different types of nutrients. So let we see how many types of nutrients are there. There are two types of nutrients, macronutrients and micronutrients. Macronutrients and micronutrients, when we talk about these things, then we know that what are the macronutrients and micronutrients. So we see that the essential elements which are required in the large amount, that is called as macronutrient, and the essential element for the plants which are required in the small amount or trace amount, very lesser amount, that is called as micronutrients. So here the large amount category or the macronutrients, so mainly macronutrients are 6 in this category, or in this sodium, calcium, phosphorus, nitrogen, magnesium, sulfur, potassium. These all are macronutrients, and macronutrients perform the synthesis of the all organic matter and development of osmotic potential, while the micronutrients are those which required for the plants in a very trace element or in a very trace amount, it means very lesser amount. These are 8 elements in this category, like iron or manganese, boron, zinc, copper, molybdenum, chlorine, etc. So let me discuss about the difference between the macro and micronutrients. Micronutrients are required for the plant in very small quantity, like molybdenum, like iron, manganese, zinc, copper, molybdenum, etc. And macronutrients which are required for the large, for the plant in the large quantity, like sodium, potassium, calcium, or phosphorus. Okay, then each macronutrients required by plant is below than 1 milligram per day or per gram of dry weight. Okay, and in this each macronutrients required by the plant is more than 1 milligram per day of dry weight, and the functions is involved mainly of the micronutrients. Functions is involved in the enzymatic actions or enzymatic activities or electron transport in the cellular level, while in the macronutrients, these all are required for the body building of the protein or body building of the plant protein and different protoplasmic structures also. And it is very easily detectable in the in the case of micronutrients, it is very typically detectable because it is required in the very lesser amount. That's why it is very typically detectable in the plant system, while the macronutrients are easily detectable in the plant system. And now we discuss about what are the manures. Manures are the very natural fertilizers. These are the some organic substances which obtained from the decomposition of the plants, animal products, and which are extremely decomposed by the bacteria, fungi, etc. by the actions of these animals on the byproducts. It means मैन्योर्स का मतलब होता है बच्चों कि नेचुरल जो खाद आप बना देते हैं, जैसे कि कोई एनिमल का कोई विस्टा पड़ा है, गोबर पड़ा हुआ है, या फिर मल पदार्थ पड़ा हुआ है, कोई उसका बाई प्रोडक्ट है, या कोई सूखी पत्तियाँ, लीव्स वगैरह हैं, उनको सड़ा करके जो लोग खाद बनाते हैं, और उसके ऊपर क्या होता है एक्चुअली कि बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाती है, फंगस ग्रोथ हो जाती है, तो उससे बनता है नेचुरल फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं मैन्योर। और मैन्योर जनरली हम लोग के घरों में बनाया ही जाता है, जहाँ पर भी गाय वगैरह पाली जाती है, तो उसमें आप देखते हैं कि गाय के गोबर को सड़ा करके उसके ऊपर कूड़ा वगैरह डाल करके उसको सड़ा देते हैं, और उस पर बैक्टीरियल एक्शन होता है, उसके बाद वो मैन्योर बन जाती है। मैन्योर का इफेक्ट सॉइल में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके लिए कोई आर्टिफिशियल केमिकल प्रोडक्ट्स और केमिकल नहीं पड़ते इस मैन्योर में, और ये एक्चुअली क्या है कि क्रॉप को डिफिशेंसी से बचाती है। जितने भी क्रॉप के लिए या प्लांट के लिए जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, जो कॉमनली रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, वो सारा प्रोवाइड कराती है, और इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल भी अच्छा रहता है। जबकि फर्टिलाइज़र, इसी के अगर अगेंस्ट में हम देखें तो फर्टिलाइज़र जो है वो एक ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों कंपाउंड इसमें होते हैं, जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं जो कि सॉइल की वाइटलिटी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और ये एक्चुअली क्या होता है, दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द वाइटलिटी ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट and the soil also. And including the fertilizers, we include the nitrogenous fertilizers, phosphoric fertilizers, calcium fertilizers. In the nitrogen fertilizers, we use generally ammonium phosphate, calcium ammonium nitrate, sodium nitrate, ammonium nitrate, etc. And in the phosphatic fertilizers, we provide the phosphorus like ammonium phosphate or superphosphate, calcium dihydrogen phosphate,
and calcium metaphosphate. Besides these manures, we also see here the new scenario about the farmyard manure, compost and vermicompost. When we see that here are the several types of digs are digging by the farmers in their fields covered by the mud from the prevention of any type of waterlogging, that is also called compost pit, and this process also called compositing. आपने अपने खेतों में देखा होगा कि जनरली किसान लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों में गड्ढा कर देते हैं और गड्ढा करके उसमें क्या करते हैं साइड साइड से एक मेड़ जैसी बांध देते हैं और उसके अंदर जो है ताकि वाटर लॉगिंग ना हो जाए, वाटर ना जाके भरे, और उस पूरे गड्ढे के अंदर एक कहते हैं गोबर है, खाद है, लीव्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, डोमेस्टिक वेस्ट है, सब भर देते हैं। तो इस तरीके का कुछ होता है, तो इसको बोलते हैं कंपोस्ट पिट। और इसके अंदर जो खाद बनती है सड़ा गला करके उसको बोलते हैं कंपोस्ट। ओके, इसी टाइप से एक नया सिनेरियो आया है वर्मी कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं कि ये इसी टाइप का गड्ढा बनाते हैं और इस गड्ढे के अंदर एनिमल वेस्ट है, लीव्स हैं, फार्म का वेस्ट है, जो फील्ड का वेस्ट बचता है एग्रीकल्चर फार्म्स में, और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या करते हैं ये लोग, इसके अंदर केचुए हैं, अर्थवर्म्स हैं, ये सब इसमें डाल देते हैं। बहुत सारा प्रोसेस इसमें चलता रहता है। और जैसे एक लेयर वेस्ट की बिछा दी, पत्तियों की बिछा दी, सूखी पत्तियों की, फिर एक खाद की बिछा दी उसके ऊपर से, फिर दोबारा गोबर की लेयर बिछाई, फिर उसके ऊपर फिर केचुए डाल दिए, क्या कहते हैं अर्थवर्म, उसके ऊपर फिर से लीव्स की कर दी। तो इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही ज़्यादा नेचुरल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो मैन्योर के रूप में काम करता है, और इसमें जब ये सॉइल में एडिट करता है तो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर देता है, और फार्मर्स की इसीलिए जो केचुआ होता है वो फार्मर का फ्रेंड भी कहलाता है, नेचुरल क्लोमैन भी इसको बोलते हैं अर्थवर्म को, इसलिए। अब आती है ग्रीन मैन्योर की बात। ग्रीन मैन्योर ऐसे कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे लेंटिल्स होते हैं, पल्सेस के पौधे होते हैं, जैसे मस्टर्ड है, आपका ये सरसों है, दालों के पौधे हैं। इनमें एक्चुअली क्या होता है कि क्रॉप सीड्स को सोन करने से पहले ही इसमें हरी पत्तियाँ या मटर की फलियाँ ये सब डाल दी जाती हैं। इससे क्या होता है कि ये सब उसके अंदर सड़ जाती हैं, सड़ने के बाद में उसके अंदर वो एक बैक्टीरियल एक्टिविटी करती हैं और इस तरीके से एक अच्छी सी खाद तैयार होती है ग्रीन मैन्योर। क्योंकि इनकी जो ये पौधे होते हैं कहते हैं दलहन वाले पौधे, जिसमें अरहर की दाल आती है, मटर आती है, चना और मूंगफली, ये सब इनकी जड़ों में कुछ नोडुलेटेड रूट्स होती हैं जिनमें बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और इस तरीके से वो ग्रीन मैन्योर बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों इसके बाद में कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में मेन डिफरेंस हमने क्या देखा। फर्टिलाइज़र तो मेनली केमिकल प्रोडक्ट है, जबकि मैन्योर जो है वो सेमी डिकम्पोज्ड नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर है, और ये एनिमल प्रोडक्ट है। और इसमें ये जो फर्टिलाइज़र है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, यानी कि कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट, जैसे मान लीजिए मिट्टी में किसी के कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम किसी की कमी हो गई तो फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। लेकिन मैन्योर में क्या होता है कि कोई न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल जो भी डिफिशियंसी होती है न्यूट्रिशन की प्लांट के अंदर उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आता है इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। देखें तो ये सभी प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है इजीली और मोर सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन मैन्योर जो है वो इजीली डिजॉल्व नहीं होता वाटर में। ये इनऑर्गेनिक है, इसलिए कोई ह्यूमस, कोई सड़ी गली वस्तु, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करता, कोई ह्यूमस नहीं प्रोड्यूस करता, जबकि ये ऑर्गेनिक मैटर है, एनिमल प्रोडक्ट से बनता है, इसलिए ये जो है ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल के अंदर। अब हमें इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है फर्टिलाइज़र की और मैन्योर की कम है, और इसके अलावा मेनली ये है कि एडवर्स इफेक्ट देता है, अगर सॉइल और टेक्सचर को ख़राब भी कर सकता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करेंगे तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, और प्लांट के लिए भी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र डाल दिया जाए तो ख़राब कर देता है प्लांट को। जबकि मैन्योर को अगर आप एक्सेस में डाल भी देते हैं तो वो उसको ख़राब नहीं करता, वाटर का प्रॉपर होल्डिंग कैपेसिटी बनाए रखता है मिट्टी की, और एरिएशन भी बनाए रखता है, उसमें हवा जा सकती है। और हम लोग उसके बाद बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर हमने देखा है इरीगेशन सिस्टम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इरिगेशन सिस्टम में जैसे वेल्स है, डग वेल्स है, ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है, कैनल सिस्टम का यूज़ किया जाता है, और रिवर लिफ्ट है, रिवर वैली है, इस तरीके से बनाई जाती है और यूज़ किया जाता है। इरिगेशन जो है टैंक्स के थ्रू किया जाता है, रिजर्वायर्स के थ्रू, आपने देखा होगा नलकूप वगैरह में बड़े बड़े टैंक्स फार्म्स में बना दी जाते हैं, रिजर्वायर्स उनके थ्रू जो छोटी छोटी नहरें निकाल करके खेतों में सिंचाई की जाती है। ड्रिप मेथड आजकल यूज़ किया जाता है, छोटी छोटी ड्रिप्स पाइप के थ्रू डिप करके एक एक टिप से पानी पौधों के अंदर जब पहुँचाया जाता है, ये ड्रिप मेथड है। इस तरीके से पौधों में ड्रिपिंग मेथड से ड्रिप बिछी हुई है, तो ध्यान से देखिए ड्रिप है, ये ड्रिप बिछी हुई है और ये ड्रिप से हर एक पौधे के अंदर पानी जा रहा है। अब आता है कि इसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन है। स्प्रिंकलर मतलब फव्वारे लगा दी जाते हैं, फव्वारे से देखिए पानी जो है वो हर एक जगह पौधों में, खेतों में, हर जगह एक एक सीड में पहुँचता है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किस तरह है, ड्रिप्स पूरी बिछा दी,
स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में स्प्रिंकल है। कैनाल इरिगेशन सिस्टम में देखिए ध्यान से, कैनाल्स खोदी गई हैं, छोटी छोटी नहरें से बनाई जाएंगी और फार्म्स में जाएंगे, आपके यहाँ जनरली ऐसा है भी। और ये जो है रिवर इरिगेशन है, रिवर्स के थ्रू छोटी छोटी नहरें काटी गई हैं साइड से। और ये क्या है, डगवेल है, कुआं खोदा गया है बाकायदा, इससे पानी रहट के थ्रू भी निकलता है और पानी की सिंचाई होती है। ये ट्यूबवेल है, ठीक है। तो हमने ये इरिगेशन सिस्टम देख लिया कई सारे। अब आता है क्रॉपिंग का बात। क्रॉपिंग जो है मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है और एक होती है इंटर क्रॉपिंग। दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझेंगे। कि मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है कि व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन फील्ड, सेम फील्ड, इन द वेरियस वेज टू अचीव मैक्सिमम यील्ड्स एंड बेनिफिट्स। मतलब एक ही सेम फील्ड में एक समय के अंदर अगर हमने 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को उगा दिया है तो वो मिक्स क्रॉपिंग है। जैसे वीड और मस्टर्ड एक साथ उगा दिया, यहाँ पर देखिए ग्राउंड नट और सनफ्लावर एक साथ उगा दिया एक ही समय में, एक ही फार्म में। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे जो है पैदावार ज़्यादा बढ़ती है और एक दूसरे को ये लोग सिम्बियोसिस के थ्रू एक पौधा दूसरे पौधे को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन वगैरह प्रोवाइड कराता है, तो इसको सिम्बियोसिस बोलते हैं। अब पता है इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ। इंटरक्रॉपिंग में केवल एक ही टाइप की फसल होती है, लेकिन उसके बीच बीच में कोई दूसरी फसल भी बोई जा सकती है, बट उसके साथ नहीं बोई जा सकती। यानी कि इंटरक्रॉपिंग का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन अ सेम फील्ड इन अ डेफिनेट रो और पैटर्न। जैसे एक लाइन लगा दी, एक लाइन में इंटरक्रॉपिंग में ग्राम के पौधे लगा दिए चने के, एक लाइन में मटर के पौधे लगा दिए और बीच बीच में गेहूं के पौधे लगाते चले गए, तो इसको बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में कोई भी 2 फसलों के बीच में आप तीसरी फसल की पूरी बाढ़ लगा सकते हैं। जैसे सोयाबीन, सोयाबीन को बहुत लोग क्या करते हैं, मक्की के साथ बो देते हैं। तो मक्की का जो पूरा खेत होता है उसमें लाइन से मक्की लगी हुई है और उस 2 मक्की की लाइनों के बीच में एक सोयाबीन की लाइन होगी। ऐसे ही पर्ल मिलेट्स और काउपी, इनको भी बोया जाता है। इसका एडवांटेज सबसे ज़्यादा क्या मिलता है कि इससे प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ती है, मिक्सिंग ऑफ क्रॉपिंग नहीं होती, क्रॉप की मिक्सिंग नहीं होती है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है वो ऑप्टिमम होता है, मैक्सिमाइज्ड होता है। टाइम और लेबर बचता है फार्मर्स का। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता है। स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। और इसमें जो है ईजिली हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और मार्केटिंग, मतलब इसमें आराम से आप फसल को अलग कर सकते हैं। यानी कि मेन इसका डिफरेंस देखिए मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग का, तो ये हमें मिलता है कि सीड्स ऑफ 2 क्रॉप्स आर मिक्स्ड बिफोर सोइंग। मिक्स क्रॉपिंग में जो 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स होते हैं उनके सीड्स को बोया जाता है सोइंग करने से पहले, मतलब बीज बोने से पहले दोनों क्रॉप्स के सीड्स को मिक्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरक्रॉपिंग में दोनों क्रॉप्स के सीड्स होते हैं उनको मिक्स नहीं किया जाता सोइंग करने से पहले। ये एक डेफिनेट पैटर्न होता है। यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग में एक डेफिनेट पैटर्न अप्लाई किया जाता है, यानी कि एक बार जो है वो सोयाबीन की खेती होगी, एक बार एक लाइन में पूरा जो है वो पर्ल या पल्सेस का पी का लगा देंगे। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं अप्लाई किया जाता। यहाँ पर जो क्रॉप फेल्योर का रिस्क है वो उसको ये मिनिमाइज़ करने के लिए हेल्प करता है, जबकि ये जो है प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है इंटरक्रॉपिंग। और बेस्ट मेथड इन दोनों में देखें तो इंटरक्रॉपिंग इज अ बेस्ट मेथड बिकॉज इज हेयर इन द केस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग प्रोड्यूस इज मिक्सड। जो मिलता है वो मिक्स होता है। जब आप फसल को उगा लेंगे तो फसल को उगाने के बाद में जो आपको उसका बीज मिलेगा वो मिक्स रूप में मिलेगा। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि यहाँ पर प्रोड्यूस जो होता है, जो भी फसल मिलेगी वो आपको अलग अलग मिलेगी, और यहाँ पर जो है अलग अलग हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, जो बल्कि संभव नहीं होती। जबकि इसमें इंटरक्रॉपिंग में अलग से आप हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग भी कर सकते हैं। अब इसमें आता है अगला कि क्रॉप रोटेशन क्या होती है। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन। अगर हम एक ही फार्म में डिफरेंट क्रॉप्स को, अलग अलग फसलों को एक ही समय में ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन प्री प्लान्ड वे में ग्रो कर रहे हैं, तो उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि कई समय तक अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है या कोई डिजीज़ हो रही है, इंसेक्ट पेस्ट लग रहा है, तो फील्ड में ये डेवलप नहीं होना पाता, उसकी बात रिडक्शन कर देता है ये प्लांट। ऐसा एक्चुअली क्या होता है कि लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनको नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ बो देते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा कि जैसे मान लीजिए एक बार लेग्यूमिनस प्लांट को बोएंगे, उसकी रूट्स में हमें पता ही है कि बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, और उसके बाद अलग से जो है मतलब जैसे मान लीजिए कि 3 महीने के लिए हमने क्या किया कि लेग्यूमिनस प्लांट को बो दिया, और उसके बाद उस सॉइल के अंदर अगर नाइट्रोजन की कमी थी तो उसको पूरा कर दिया, उसके अंदर जो रूट के अंदर बैक्टीरिया थे। अब उसके बाद अगले 6 महीने या 3 महीने के बाद जब हम दूसरे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को बोएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उनको भी नाइट्रोजन
मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसा एग्जाम्पल है कि इसमें जैसे 1 ईयर रोटेशन, 2 ईयर रोटेशन और 3 ईयर रोटेशन करते हैं। ऐसे कि जैसे 1 ईयर रोटेशन में राइस और वीट, एक बार 6 महीने के लिए राइस बोया गया, 6 महीने के लिए वीट, जैसे मेज़ 6 महीने के लिए मेज़ और 6 महीने के लिए मस्टर्ड। ऐसे 2 ईयर रोटेशन में मेज़, मस्टर्ड और जैसे मेज़ मस्टर्ड 1 साल के लिए वो दिया गया, फिर शुगर केन और फेन्यूग्रीक। ऐसे मेज़ पोटैटो को बोले शुगर केन और पी। 3 ईयर में कॉटन, शुगर केन और पी, फिर मेज़ और वीट। ऐसे राइस, वीट और मूंग, मस्टर्ड। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बच्चों, अब हम आगे जो है अगले पार्ट की बात करेंगे। तो हम अब एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे इस पार्ट 4 में। और आज तक के लिए बस इतना ही इस पार्ट में। एंड टिल देन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।